Hello, all. Very good morning. Very warm welcome to all of you. Thank you so much for joining. I'll be just starting in a few minutes. Before that, I just want to know how many of you are attempting for prelims and how many, for mains, and how many of you are just here to get an insight and just started their preparation. So, I'll keep that in mind and I'll be able to help you out better. I hope I'm audible to all of you. Okay, all right. So anybody who is giving mains, okay, Gomti, you are yes, okay, okay, okay. Just can you write me a hi on the message group so that I can remember your name? Okay, all right. Very congratulations, Anindya. Okay. All right, so we'll begin. I'll try to keep in mind that how you can consolidate your preparation even if you're a beginner. But yes, towards the end of the, you could say, session, I will try to help you out with, or let's just say students who are giving mains this year, then some insights for those students as well. So I'll just begin without wasting any other time. Now I hope your preparation is complete in like in terms of your answer writing, like you're saying you're a beginner, that is okay. But Anindya, your like your notes and everything is ready? Not fully. Okay. So I would suggest that first please complete your notes. All right. So I'll just begin with, without wasting any time, I'll just begin simply that how can we write a good answer, or how do we identify the question? How do we understand the question? A lot of times you will see me. I hope everybody is comfortable with English and Hindi. So these are the two language I'll speak. So yes, how do we understand first of all what the question is asking, और बाकी जो भी आपका पैटर्न है सब क्या है. So अगर कभी भी आपको टाइम मिले, if you are a beginner and जैसे कुछ मेंस लिख रहे हैं, so one thing that you need to do is first of all just go through the pattern of the paper. That means आप जो previous year paper है या जो भी last paper आया है, एक बार पैटर्न को रीड आउट करिए. नॉट आई एम नॉट आस्किंग कि क्वेश्चंस पढ़ने हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू understand the questions or whatever. I'm simply asking just understand how exactly UPSC is designing the, you could say, the question paper. This way you will first of all understand the pattern, how they are asking. Let's just say there is a section A, there is a section B, whatever it is. What is the word limit? What is the kind of questions, word limit that they're giving, or what is the number marks that they're giving? कितने कंपलसरी अटेम्प्ट है, कितने नॉट कंपलसरी अटेम्प्ट है. तो उस हिसाब से आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन how is the paper set and how I'm going to attempt. A lot of times students don't even know कि paper में कितना compulsory questions है, कितने compulsory नहीं है. Let's just say 10 options are given, out of which only 5 you have to do. But what happens, students don't know that this is the thing that they have to remember. या फिर वो पढ़ते नहीं है, they don't see the instructions that is given. So it is very important that you read out the instructions very carefully and you understand what is the pattern of the question paper. ठीक है. Now this is a non psychology exercise. This is applicable for your other GS papers also, whether it is polity, economics, your history, any other paper. सारे ही पेपर में आपको पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन पेपर में. ठीक है. So that first of all you know that these many questions are there. This is how I'm going to do. Now again, when you get your question paper in the examination hall, then also it is very important that you read out the question paper. आपको एक reading time मिलता है, उस पे read out करिए अच्छे से.
carefully जो भी instructions हैं, it could be कि they might have changed any kind of instructions या उन्होंने कुछ और लिखा हुआ है साथ में, तो वो बहुत ध्यान में देने वाली बात है कि आपको properly जो भी आपका question paper है उसको पढ़ना है. Now as soon as you get the paper, ठीक है, आपको properly तो instructions पढ़ने हैं, and secondly you have to start reading the questions, and maybe with a pencil or back in the mind you have to start मार्किंग कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं या ये वाले क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते हैं. ठीक है, so this will, you know, when you start writing, because आपके पास 3 hours है and you have to attempt so many questions, you have to be very very careful कि आपका जो 3 घंटा जो है वो कैसे यूटिलाइज होगा बहुत प्रॉपरली, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड ऑब्वियसली दैट विल कम जब आपको लास्ट में जब आप फुल टेस्ट सीरीज लेते हो उसमें ये वाली प्रैक्टिस हो जाती है आपकी. ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पेपर साइकोलॉजी में हम अच्छे आंसर्स कैसे लिखते हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद में रखने की जरूरत है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you see a question, you know, you need to identify the key terminologies in that question. Clearly understand what exactly the question is asking. A lot of time you must have seen in my, when I do the evaluation for the answers, I write you have not understood the demand of the question, or I say you have understood the demand of the question. So what exactly do we mean by this? Now every question एक कोई sense of direction होती है, because towards the end or in the beginning somewhere or the other they will write certain words like discuss, evaluate, elucidate, compare, with examples, justify, suitable examples के साथ बताओ. तो ये सारे आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि डिस्कस का मतलब क्या होता है, इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, क्रिटिकली इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, यू नो, जस्टिफाई करने का मतलब क्या होता है. So let's just say memory is not like a tape recorder. Full stop. Justify. If I have just simply given discuss, so you just have to discuss. If I have said कि justify करना है, तो आपको proof करना है कि नहीं memory उसके जैसी नहीं है. आंसर more or less similar रहेंगे, but हो सकता है कि जो आपका introduction है और जो आपका conclusion है उसका थोड़ा सा जो language है वो change हो जाएगा. When I say critically evaluate, that does not mean that you only have to give negative points. It is, you have to balance out between the pros and the cons. So any question, whether it is psychology or it is for other GS papers, please understand these terminologies. जब आप previous year question papers देखेंगे, आपको ये वाले vocabularies use होते हुए हर जगह दिखेंगे. So you please make a list maybe, or you just see through dictionary कि what exactly these questions mean. Then you will have a better understanding that what exactly the question is asking you. A lot of time it is not asking you to discuss, it is not asking you to elaborate, it is not asking you to give a very detailed comprehensive kind of a content. Sometimes it is just asking you to compare, sometimes it is just asking you to justify and simply give an example. तो वो आपको ध्यान में रखने की बात है कि पूछ किस रहे हैं, किस दिशा में रहे हैं, या पूछ किस एंगल से रहे हैं. So this is very important. If you have not understood the question properly, very good chances that you will write more, or you will write inappropriate answer, or you will not write according to what they've asked, and you might lose out numbers. ठीक है, तो वो ध्यान में रखने की बात है कि exactly what they are asking. ठीक है, all right. Second down, yes, break down the questions into part. Let's just say sometimes you get a simple statement. कभी कभी आपके पास एक ही statement आती है that what is this, full stop or question mark. So that is one single part. But sometimes you get two different kind of you could say domains में questions आते हैं. They have integrated in some manner. So for example, what is personality? How can you construct a test or psychometric test in measuring personality? तो ये आपका दो अलग अलग एरियाज हो गया. पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है कि पर्सनालिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, एंड द सेकंड पार्ट दे आर आस्किंग इज हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट a test. So what are the various steps which are involved in constructing the personality? So these are two different units also. ये personality जो unit है आपका paper 1 का है, and test construction जो unit है आपका paper 2 का है, but they have combined it together. So sometimes yes, you get an integrative question also. So you have to make sure that you know you understand कि पार्ट्स में गिवन है तो पार्ट्स में आंसर करना है, अगर एक ही क्वेश्चन गिवन है तो कैसे उसको स्ट्रक्चर करना है, और क्या कंटेंट होना चाहिए, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So first of all, identifying what exactly the question is asking you. If it's asking you, if it has stated कि yes, give examples, it is important that you give examples. ठीक है,
सो दिस वे व्हेन, अच्छा, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितना कंटेंट लिखना है कितना नहीं लिखना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पैटर्न। ऑलराइट, नाउ मेन बॉडी जो है, मेन जो कंटेंट है आपका, वो कैसे आपका बेटर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, please understand there is a word limit that is attached, though they have not given you any word limit anywhere, but it's imperative that you write well within the word limit. I think जब आप instructions पढ़ोगे उसमें भी mentioned है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास let's just say 10 marks का question आया है और आपने 400 words का या 300 words का एक बड़ा सा आपने ऐसे लिख दिया है, तो वो तो नहीं चलेगा obviously। सिमिलरली अगर आपका 15 marks का question है, that also you don't have to write very lengthy answer, and then you have lastly 20 marks. These are the three categories that you will get: 10 marks, 15 marks and 20 marks. So ये तीन categories है अलग अलग। There is obviously some kind of word limit, you don't have to exceed it, you don't have to overdo it, you might end up losing marks, and you it could also be कि आपका जो time है वो भी waste हो रहा है ना। तो इतना हमें कंटेंट लिखना ही नहीं है, हमें बहुत ही प्रिसाइसली स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट लिखना है। इट शुड नॉट बी दैट यू राइटिंग पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स। इट्स नॉट यूनिवर्सिटी एग्जाम, इट इज नॉट एनी स्कूल एग्जाम जहाँ पे आप पेजेस पे पेजेस भर रहे हो, उससे आपको कोई बहुत बेटर मार्क्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है कट ही जाए आपके नंबर। ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर ऑब्वियसली काफी एक्सपर्ट है, ट्रेंड है, तो ऐसा नहीं है उसको पता नहीं है कि वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है कि नहीं, देख के ही समझ में आ जाता है। सी ऑफ कोर्स 40-50 words plus minus is okay, that's not an issue, but it should not be कि 200-300 words आपने exceed कर दिया। So for 10 marker it is ideal that 150 words, 20-30 words plus minus। ठीक है। So 150 words में you have to write the answer। 10 मार्कर जो क्वेश्चन होता है यूजुअली या नोट के फॉर्मेट में होता है या शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये, तो इसका कंटेंट भी इतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। So straight away you have to jump to the main point that you have to discuss। When it comes to 15 marks question, you have again let's just say around 200 words। ठीक है। तो 200 words में आपको आराम से again plus minus 20-30 words you have to explain what they're asking here। Yes, you have a little scope of giving an introduction and some kind of conclusion, but main concern जो है आपका, आपका मेन जो बॉडी होना चाहिए उस पे होना चाहिए, जो वो पूछ रहे हैं वो आपको elaborate करना है। 200 वर्ड्स में यस आपके पास 250 से 300 वर्ड्स का मार्जिन होता है। ठीक है। तो इसमें आप यस यू कैन ऑफ कोर्स, थोड़ा सा ये लेंदी होता है, हर यूनिट में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। they will only give few questions for 20 marker, but there will be a question for 20 marks, so that way you have to again see here you have you could say a good मतलब आप इंट्रोडक्शन अच्छा दे सकते हो, कंटेंट भी आपका अच्छा होगा, एंड देन आपका कंक्लूजन जो आएगा वो आपको लिखना है। Now again 250 words 300 words कोई बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं कि you're just writing pages and paragraphs, so वो भी आपको स्ट्रक्चर ही करना पड़ता है, you have to cut short। See that all of this I will tell you in the later slides कि कितना कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे शॉर्ट करना है, but let's just discuss what exactly do we expect in a good answer, या how do we structure a good answer। let's just say आपने क्वेश्चन देखा, आपको कोई थ्योरी है वो आपको पढ़नी है, एक्सप्लेन करनी है, तो कैसे स्टार्ट होना चाहिए। सो आई एम स्टार्टिंग सी फॉर अ 10 marker question, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू। ठीक है। एंड यूजुअली शॉर्ट नोट का होता है, तो आप स्ट्रेट अवे बॉडी से स्टार्ट कर सकते हो। कोशिश करो जो लॉजिकल फ्लो है वो फॉलो करो, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड उसी सीक्वेंस में आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक थ्योरी आपने इधर लिखी, another example somewhere else and some theory somewhere else, and there is no interconnection between the two। that means कि coherent नहीं है आपका आंसर, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ सारी चीजें डाल दी हैं, but it's not making any sense। so there should be a logical flow। secondly, जो भी theory application जो भी पूछ रहे हैं उससे related आपको discuss करना है कि क्या थ्योरी है, क्या क्वेश्चन है, क्या पर्सपेक्टिव्स वो पूछ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू राइट ऑफ कोर्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई जो रिसर्च सपोर्ट करती है, कोई एविडेंस अगर आपके पास है उससे रिलेटेड, तो प्लीज बैक इट। नाउ हाउ डू वी फाइंड दिस एविडेंस और रिसर्च और सम स्टडी दैट हैज बीन डन। See, when you're preparing for psychology UPSC optional, I'm sure you must be following Barron
or you're following Cicerelli or you're following any XYZ book, ठीक है. आप रिसर्च पेपर्स भी देखते होगे नेट पे. इग्नू में अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं गिवन है, सो आई विल नॉट टेक द इग्नू कंटेंट का नाम, बट बुक्स में अगर आप देखोगे आफ्टर फ्यू स्टेटमेंट्स, जैसे कोई स्टेटमेंट गिवन है, आपने नोटिस किया होगा कोई एक ऐसा ऑथर का नाम लिखा रहता है एंड 2000 सम ईयर इज गिवन, ठीक है. या फिर ऐसे ABCD करके, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ए ऑल एंड 2001, ठीक है. I'm sure you must have noticed this, that according to this person, and in brackets they are given the year, so and so statement. Similarly या फिर ऐसे brackets में given होगा, ठीक है. Now these are exactly what you need to remember. मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा ही पूरा याद करना है, but these are basically telling us that whatever that statement is saying, that has been researched, there is a proper evidence, there is a study which has proven this, and हमने वो statement वो study से निकाला है. So हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप कोई कंटेंट नहीं बना के लिख रहे हैं. We are actually giving you statistical data, ठीक है. So this is what this signifies. Now obviously it would be impossible task कि आप हर एक statement में या हर एक जब आप notes बना रहे हैं तो हर चीज में, because वहां books में तो हर जगह लिखा हुआ है, हर paragraph में आपको मिल जाएगा. But yes, you know, certain, see, when you see the syllabus, when you see कि you know क्या units हैं आपके, क्या important topics हैं, and if you have done the previous year exercise, now by this time you know what kind of questions would be coming, और what kind of questions या जो important topics हैं वो कौन कौन से हैं, so इतना एक rough idea हमें लग जाता है, ठीक है. तो उसमें at least it is very important that in those areas, at least on those important topics which are direct questions, like I was talking about multi-store model theory, or if I was talking about परसेप्शन का कोई थ्योरी है, तो उसमें पता है कि ये 3 थ्योरी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में गिवन ही गिवन है, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि हु हैज गिवन दिस, इन विच ईयर हैज ही टॉक्ड अबाउट इट, सो एंड सो फोर्थ, राइट. सिमिलरली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है आपका, उसमें बहुत सारा सोशलाइजेशन का आता है. दे विल आस्क यू व्हाट इज हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑफ दैट. in that content you will have some studies backing the answer that yes, both heredity and environment is important. कौन बोल रहा है, ये कैसे प्रूव हुआ, तो वो आप अगर जब ब्रैकेट में लिखते हो, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू दिस इज लाइक अ वैल्यू एडिशन टू योर आंसर. पैराग्राफ्स तो कोई भी लिख लेगा, आंसर कंटेंट तो कोई भी लिख लेगा, सबको कुछ ना कुछ लिखना आता है, सबने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होती है, बट आपका जो आंसर है वो स्टैंड आउट कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, ठीक है. सो अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन दिस इज व्हाट लैक्स द मोस्ट, कि बच्चे क्या है पैराग्राफ्स में कंटेंट तो लिख देते हैं, बट उसको कोई यू कुड से रिसर्च से सपोर्ट नहीं करते या एविडेंस से सपोर्ट नहीं करते. So this actually, you know, makes your answer stand out, and it tells us that, you know, definitely you have prepared better and you are backing your statements with some kind of proper study. इवन इफ पूरे आंसर में एक ही लिख दोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो ही मतलब यू नो इट विल बी लाइक अ गेम चेंजर. सो कोशिश करो wherever possible, wherever you can remember, you know, please, and this will only come जब आप अपने notes इतने अच्छे वे में तैयार करोगे and multiple revisions of that note, then only you will be able to remember, otherwise पेपर में याद भी नहीं आएगा, ठीक है. सो एक दो भी अगर आपको आंसर में याद आ जाता है तो इट्स लाइक अ, आई एम डेफिनेटली सेइंग इट्स अ ब्राउनी पॉइंट. व्हेन आई एम डूइंग द इवैल्यूएशन आल्सो, आपने देखा होगा कई बार मैं बोलती हूँ कि किस ईयर में दिया, किसने बोला ये थ्योरी, तो वो याद रखना बहुत जरूरी है. स्पेशली कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, साइको एनालिसिस थ्योरी, साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, अटेंशन की जितनी भी थ्योरीज हैं आपकी, मेमोरी की, लर्निंग की जितनी भी मॉडल्स हैं, लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं, किसने दी थी, कौन से साल में दी थी, तो वो सारी चीजें आपको ऑन टिप्स याद होनी चाहिए, ठीक है. सो दिस इज दैट. then of course write a balanced answer. जो भी आपका content है, whatever the question is asking, please focus on that and write the content. Now when I talk about one जो 15 mark का question है and जो 20 mark का question है, वहां पे आपके पास liberty होती है to start an introduction. So yes, it's like a very brief, जो भी question पूछ रहे हैं एक brief statement से या एक brief गुड ओपनिंग स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो. इट वुड बी एनीथिंग, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये पूछ लो कि दीज आर द फॉलोइंग ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके भी कर सकते हो अगर कुछ बिल्कुल याद नहीं आ रहा है उस समय. बट यस, लेट्स जस्ट से व्हाट इज साइकोलॉजी एंड व्हाट हाउ साइकोलॉजी कैन बी important in solving societal problem. then it would be nice कि आप एक अच्छा सा definition दें by given by a good important person.
ठीक है, तो जैसे अगर फ्रॉइड ने क्या बोला है साइकोलॉजी के बारे में, या साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन, एंड देन सम अदर current examples or current statements ki what is psychology exactly, who has given this, and so forth. So this way, and then try to give an idea कि अभी next मेरे पास content में क्या आने वाला है. So आप लिख सकते हो कि maybe you can make a flow chart, maybe you can make a small diagram. So as an examiner, when I read it, for me it becomes very structured. I know that you are a very sorted person, you have very clearly written what the content is there, and for me correction would become very easy. Now just imagine अगर मैं यही same content मैं बहुत ही पैराग्राफ्स में लिख देती, पॉइंट्स नहीं डालती, तो आपको खुद कितना ज्यादा इरेलीवेंट लगता कि मैं इतना कैसे पढूं. अभी आपको लगेगा ये भी मैं कैसे इतना सारा पढ़ लूं, है ना. तो सेम इज विद द एग्जामिनर ऑल्सो. यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर इन पॉइंट वाइज, इन बुलेट पॉइंट्स. जो इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स है, जैसे ये जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो डेफिनेटली. ठीक है, तो दिस वे में, एंड समराइज योर आंसर. नाउ समराइजेशन कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिर्फ कंपेयर करना है, तो बस लास्ट में कंपेरेटिव एंड समराइज कर दो कि ओके दीज वर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस. अगर वो पूछ रहा है कि कोई फ्यूचर स्टडी है, critically evaluate and all of that, then yes, you can give a final viewpoint or an evaluation as per your thought. Sometimes the question is, what do you think? Is it right according to you? So they are asking your opinion. So yes, towards the end, please write your opinion. ठीक है, या फिर अपना कुछ when you write your viewpoint, when you write your opinion, of course back it with some study. ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख दिया. ठीक है, लास्टली अगर कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जो सोसाइटी प्रॉब्लम्स को चेंज करने के लिए है, या सोसाइटी में चेंज लाने के लिए है, तो उसमें कोशिश करो राइट द implications ऑफ दैट थ्योरी, ऑफ दैट कंटेंट. राइट सम फ्यूचर डायरेक्शन कि आगे हम क्या इसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, या सम एप्लीकेशन दैट कुड बी रेलिवेंट. नाउ प्लीज डोंट राइट अ नेगेटिव आंसर. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी स्पेशली जैसे पेपर 2 है आपका, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सोसाइटल प्रॉब्लम्स, दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड सो फोर्थ. एंड समटाइम्स द स्टेटमेंट इज आल्सो वेरी नेगेटिव. द क्वेश्चन दैट यू आर गेटिंग वो भी बहुत ही नेगेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट होता है, but that does not necessarily mean that you have to criticize, or you have to overly be negative, or you have to be very pessimistic towards your answer. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हम सबको पता है कि सोसाइटी में क्या है. जैसे एथिक्स का भी आपका पेपर होगा, या बाकी जो आपके जीएस के पेपर होंगे, कुछ कुछ टाइम्स ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं ऑलरेडी बहुत गड़बड़ है, या ब्राइब है, या यू कुड से डाउरी का प्रॉब्लम है. तो आपको और प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस नहीं उसमें मेंशन करनी है. ये नहीं बताना है कि हाँ इतनी प्रॉब्लम है और कुछ हो ही नहीं सकता है. ठीक है, यू एज एन आईएएस ऑफिसर, व्हाट दे आर लुकिंग इनटू एन यूपीएससी एस्पिरेंट, कि आप एक सोल्यूशन फोकस्ड इंसान है. सो दैट इज व्हाट योर आंसर्स शुड रिफ्लेक्ट. You have to believe that you are an IAS officer, or you have to believe that you have cleared the UPSC, and उसी mindset से आपको ये attempt करना है. आप बनने जा रहे हो, that is of course true. In reality that is the case, but if you will not manifest inside you, if you will not be confident, आपका जो thought process है, जब तक आप उनकी तरह नहीं सोचोगे तब तक वो आएगा ही नहीं. तो ये बहुत important है कि whenever you get a question which is particularly making you write something negative, try to balance out your answer. Don't write overly negative, don't try to overly criticize, या don't try to overly write a very pessimistic answer towards the government and the policies कि कुछ execute नहीं होता है, कुछ ये नहीं होता है. आप ये बताइए कि आप as a IAS officer उसको solve कैसे कर सकते हो. So if you have understood psychology, how can you use psychology in future direction, in policy making, in helping out students, or in helping out individuals, या कुछ भी है, मतलब स्टूडेंट्स इन द सेंस की जो भी जैसे से डेलिक्वेंसी का प्रॉब्लम है, या कुछ और यूथ को कैसे हेल्प करना. लॉट ऑफ टाइम यू गेट क्वेश्चंस कि यूथ में ये प्रॉब्लम है, एंड सो फोर्थ. So what can be done? One or two liners would be good enough. You don't have to very elaborate, or you have to be very very. Sometimes तो वो directly question में ये पूछ लेते हैं कि क्या हम solutions दे सकते हैं, क्या application कर सकते हैं. तो आपको पूरा आंसर ही उस पे पेस्ट होगा. कभी कभी नहीं पूछते तो आप दे सकते हो अपने साइड से. So these are some good ways of ending your answer. Now this is only mostly possible in a 15 marker and a 20 marker question. ठीक है, तो आपको अपना जो आंसर है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है. डोंट see sometimes the question would remain the same, what is psychology,
define psychology with examples. Now this question if I've given for 10 marks, तो आपका कंटेंट बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत ही डायरेक्ट हो जाएगा. You don't have time for good introduction also and for conclusion also. आपको directly start करना है that psychology is this and so forth. अगर मैं 15 मार्क्स में पूछ रही हूँ, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो एक अच्छी ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ, फिर मेन कंटेंट एंड देन सम कंक्लूजन. अगर 20 मार्क्स है तब आपके पास काफी वर्ड्स लिमिट है, तो एक अच्छी डेफिनेशन के साथ, एक अच्छी थ्योरी के साथ, then maybe draw a diagram and so forth and then give a conclusion. So that is how you can do diagrams. तो any which way कभी भी आपको लगे किसी भी चीज को आप फ्लो चार्ट में डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो. So please do, instead of saying कि there are 4 pillars of psychology or there are 4 waves of psychology, तो instead of paragraphs में लिखने के बजाय if I just make this 4 में अगर ऐसे बना दूं, तो वो थोड़ा देखने में भी अपीलिंग लगता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है, आई नो एज एन एग्जामिनर व्हाट टू एक्सपेक्ट, सो आई कैन क्विकली गिव यू मार्क्स. ठीक है. नोबडी, ट्रस्ट मी, नोबडी वांट्स टू रीड पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स. अगर आपने हाईलाइट नहीं किया है, आपने अंडरलाइन नहीं किया है, तो आपका आंसर नहीं स्टैंड आउट करेगा. ठीक है. So this is how your answer should look like. Now coming to the writing style, what exactly do we keep in mind? किस तरीके से answers हमें लिखने चाहिए, नहीं लिखने चाहिए? So let's quickly talk about that. First of all, your writing style should be very clear and precise. Now when I say clear and precise, a lot of times, see, it could be that you have prepared for the content, and when you start writing answer, you just write everything under the roof. Now, when I read as an examiner, I can see it's not coherent. The entire statement from, let's just say, the first sentence in the last sentence. You have given important terminologies and all of that, but as a whole, that answer is not making any sense. या कोई क्लैरिटी नहीं लग रही, कभी कुछ भी बता रहे हो, कभी कुछ भी बता रहे हो. सो वो नहीं होना चाहिए. जो आपका राइटिंग स्टाइल है, पहली बात तो हैंड राइटिंग वगैरह बहुत क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. नाउ ऑफ कोर्स हैंड राइटिंग बहुत ही पर्सनल सब्जेक्टिव चीज है, किसी की हैंड राइटिंग कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, बट एटलीस्ट कोशिश करो कि लेजिबल हो, पढ़ने में समझ में आए. ऐसा ना हो कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो एग्जामिनर भी टाइम नहीं वेस्ट करेगा, वो फटाफट आपका आंसर कॉपी चेक करेगा और आगे बढ़ जाएगा. तो कोशिश करो कि पढ़ने में इजिली हो. ठीक है. अगर नहीं हो रही है तो प्लीज आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स that make your own notes, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो जीएस हो, कोई भी और पेपर हो, मेक योर ओन नोट्स एवरी डे, राइट समथिंग. उससे आपका प्रैक्टिस रहेगा और आप एकदम से जब वहां आंसर लिखने जाओगे तो पॉच पॉच नहीं होगा. सो राइट अ क्लियर वे. देन क्लियरिटी एंड प्रिसिशन से लिखना है, यानी कि यूज क्लियर लैंग्वेज, कंसाइज लैंग्वेज, शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है. अवॉइड टेक्निकल जार्गन्स, दैट मीन्स कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी जो ना आप एक्सप्लेन कर पाओ ठीक से और वो बहुत अटपटा भी लगे, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो आपको पर्टिकुलरली पता है बट नेसेसरली उस आंसर में नीडेड नहीं है या उस आंसर का पार्ट नहीं है, तो मत डालो. कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्ड जो आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अवॉइड दैट completely. You have to be very very simple and clear. You don't have to write, you don't have to be Shashi Tharoor and give amazing kind of vocabulary. हमें vocabulary का show off नहीं करना है वहां पे. एनी विच में जब आप साइकोलॉजी पढ़ लेते हो तो काफी टेक्निकल लैंग्वेज वैसे ही आ जाती है, तो आपको अननेसेसरी कोई भी ऐसी वर्ड, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाना है. सिंपल वे में जो आप कहना चाहते हो उसको बोलो. ठीक है. सेकेंड इज रेलिवेंस. स्टे फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन. अ लॉट ऑफ व्हाट हैपेंस, स्टार्ट तो आपने सही किया होता है, एंड तक आते आते पता नहीं कहाँ चला जाता है क्वेश्चन का डायरेक्शन. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा था आपसे, और जो सेकंड पार्ट था एक्सप्लेन, सूटेबल, एग्जाम्पल, जस्टिफाई, तो वो एंड में कंक्लूजन में आना चाहिए कि जब आप अपना स्टेटमेंट एंड करो तो पता लगे कि हाँ इन्होंने इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है. ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि स्टार्टिंग में तो स्टार्ट सही किया था, एंड तक आते आते सब लॉस्ट ही हो गया. सो जैसे आई गेव द क्वेश्चन दैट व्हाट इज वर्किंग मेमोरी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, everybody started nicely, everybody was giving that what is a working memory model, क्या है working memory का, बट लास्ट में मैंने लिखा था explain with examples, वो तो किसी ने दिया ही नहीं, तो फिर वो चीज हाफ ही रह गई, मतलब मिस हो गई. तो stay focused on what the question is asking. Do not deviate from the main topic. Let's just say कोई societal problem के बारे में लिखा है,
तो और ही ज्यादा कुछ और टॉपिक के ऊपर आपको बात नहीं करनी है, जो पूछा गया उतना ही जवाब दीजिए, वैसे भी आपके पास वर्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। देन प्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई वुड से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप बुलेट पॉइंट्स यूज करिए, आप एरोज यूज करिए, आप 1 2 3 4 नंबरिंग यूज करिए, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वैसे तो पॉइंट वाइज पूछते ही नहीं है कि 5 पॉइंट दीजिए या 6 पॉइंट दीजिए, बट यू नो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। चलो चलो, मैं जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 2 ही 3 पॉइंट है या 4 ही पॉइंट है, तो लिखने में लगेगा कि 4 पॉइंट लिखा है तो हो सकता है कम मार्क्स मिले, बट अगर आप उसको बुलेट में लिख लोगे तो थोड़ा सा ना ध्यान नहीं जाते कि कितने पॉइंट्स लिखे हैं कितने नहीं लिखे, राइट। सो दिस वे यू नो आई वुड प्रेफर बुलेट पॉइंट्स आर बेटर, बट हाँ अगर किसी थ्योरी में 3 पॉइंट्स है तब तो 3 ही लिखोगे, ठीक है, तब तो उसमें लिख सकते हो 1 2 3 एंड सो फोर्थ। गो फॉर बुलेट पॉइंट्स, गो फॉर एरोज, गो फॉर हेडर्स। तो आप प्रॉपर हेडिंग्स डाल के फिर स्टेटमेंट्स को लिखना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही आपने हेडर ऐसे लिख दिया और फिर इतना बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया है, तो वो तो बहुत ही आई वुड से लॉस, ठीक है। कोशिश करो हेडर्स में लिखो। सेकेंडली, जहां जहां पॉसिबल है, मेक डायग्राम्स, मेक फ्लो चार्ट्स, आई हैव कीप सीइंग अगेन एंड अगेन, जितना ज्यादा हो सके विजुअल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दो अपने आंसर को। उससे क्या होगा, एक तो आपकी वर्ड लिमिट सेव होगी, सेकेंडली डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, देख के समझ में आ जाता है एग्जामिनर को कि क्या कहने की बात हो रही है, या फ्लो चार्ट्स भी कभी कभी इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, देख के समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स इन अ रिसर्च, ठीक है, या स्टेप्स इन कंडक्टिंग हाइपोथेसिस। तो अगर उसमें आप उस डायग्राम से जो एक फ्लो चार्ट है वो बता दोगे कि पहले हम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, फिर ये होता है, फिर ये होता है, अगर आप ऐसे ही लिख दोगे तो आपका काफी टाइम भी सेव होगा और आपके वर्ड्स भी सेव हो जाएंगे, instead of you know first we will do this and then we do this and then we do this. So I hope I'm making sense now. In your books, in your content, yes, certain times नहीं दिया है आपका वो डायग्राम या फ्लो चार्ट, इट्स नॉट गिवन, बट दैट इज योर स्किल, वो आपको करनी है। जब आप नोट्स बनाने लगोगे, आपके नोट्स इस तरीके से होने चाहिए कि अगर लिखा है कि देर आर 4 important पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट, तो 4 important पॉइंट्स ऐसे लिखने के बजाय अगर मैं उसको थोड़ा सा बॉक्स में बना दूं, यू नो ऐसे कर दूं, तो थोड़ा देखने में अपीलिंग लगेगा। या चलो ऐसा नहीं बनाना तो आप ऐसे बना लो, ठीक है। सो दिस वे कोई भी छोटी से छोटी चीज है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। You will only have 7 to 8 minutes. I'll just come to this also कि कितना टाइम है, बट आप खुद कैलकुलेट कर लो। 3 hours का पेपर है, अराउंड 25 questions. So if you divide your time, you have 7 to 8 minutes only to read the question paper. Sorry, read the question, to formulate the answer or articulate the answer in your head. Start writing, and अगर 20 marks का है तो उसमें आपको properly इलेबोरेट करके लिखना है, और अगर छोटा है तो चलो फिर आप थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हो, बट ये 7 to 8 आई वुड से इज देयर। तो आप सोचो कि आपको कितनी क्विकली ये सारी चीजें लिखनी है, यानी 1 2 minutes is gone in your reading the question, understanding what they're asking, and recall and articulate your answer, and then the rest 5 minutes that you have is to write answer। तो इतनी स्पीड में आपको लिखना है, मतलब सर उठाने तक कभी मेरे को लगता है टाइम नहीं मिलता है। तो ये आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट टेल यू हाउ टू गो अबाउट विद दिस प्रैक्टिस ऑल्सो, बट यस दिस इज योर टाइम फ्रेम, 7 to 8 minutes, ठीक है। प्लीज रिमेम्बर, प्लीज कीप दिस इन माइंड, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग स्टिक टू द वर्ड लिमिट, बिकॉज आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है लिखने का, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल आई वुड वांट टू गिव यू ओवर हियर, जैसे आपने ह्यूमनिस्टिक का मॉडल पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो यू विल सी इवेंचुअली। तो ह्यूमनिस्टिक मॉडल इज सेइंग व्हाट, दैट व्हेनेवर योर आइडियल सेल्फ, जो कार्ल रॉजर्स ने बोला था, व्हेन योर आइडियल सेल्फ इज इनकॉन्ग्रुएंट विद योर रियल सेल्फ, देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब मैं जैसे ये थ्योरी में है, यू कुड हैव रिटन दिस इन बुलेट पॉइंट्स, but how do we present that in terms of diagram? This is also given in your NCERT, and that is why NCERT also sometimes is a very very good source of content. तो अगर मैं सिंपली ये बोल दूं कि ये मेरा आइडियल सेल्फ है और ये मेरा रियल सेल्फ है, एंड दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है,
एंड व्हेन आई से कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जब एक साथ अंदर आ रहा है, सो आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ एंड दिस वन शोज कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। सो दिस से थोड़ा सा ना विजुअली बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है आपका आंसर और नंबर देने का मन करता है एग्जाम में। ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग। नाउ व्हेन आई से कि मैस्लो की थ्योरी है या रॉजर्स की थ्योरी है, तो ईयर तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि आपको करनी है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, वो तो गिवन ही है कि आपको ईयर के साथ किसने दी थी और कौन से साल में दी थी, वो आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यू नो इट विल बी लुकिंग वेरी फुलिश कि आपको यही नहीं आता है, you know, and that is why your answer will stand out if you include these points। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बस don't write for the sake of writing, this is a competitive exam that we are talking about, it's not a university exam, it's not a school exam, it's not any other competition, it's a UPSC level examination। तो आपका आंसर और प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, देन प्रिपरेशन टिप्स, अब ये जो आप पूछ रहे हो कि ये 7 to 8 मिनट्स और ये हम कैसे करेंगे एंड सो फोर्थ, योर इंटायर आपका जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। सो प्रिपरेशन टिप्स, पहली बात तो रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, वो तभी आएगा। अब डे वन पे अगर आप बैठोगे करने, नहीं होगा आंसर। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई साइड, हो सकता है पूरे हफ्ते ही ना हो आपसे, हो सकता है आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई करी है, वेल एंड गुड, कंटेंट इज डन, हो सकता है कि आपको आता भी सब कुछ है, बट जब आप आंसर लिखने बैठोगे तब हो सकता है, चाहे वो जीएस का पेपर हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो ऐसे क्यों ना हो, ऐसे की भी प्लीज प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो नहीं आता एकदम से, यू डोंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट, दैट विल ओनली कम व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग एवरी डे। हो सकता है पहले कुछ दिन बहुत बकवास आंसर लिख रहे हो, दैट्स नॉट एन इशू, but don't get tempted to go on the Google and start googling the question and then start writing the answer। that is exactly not what we want। वो आपका ब्रेन नहीं है, वो आपने कहीं से पढ़ा है, उसी को कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और अगर आप ये सोचो कि मैं पहले थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ और मैं फिर आंसर लिख दूंगा देखने के बाद, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट अप्रोच ऑफ डूइंग इट। पहले प्लीज रिवाइज कर लो अपना टॉपिक, मान लो अगर आपको यूनिट वाइज भी करना है तो पूरा यूनिट अच्छे से रिवाइज करो, फिर आंसर लिखना स्टार्ट करो। ये नहीं होना चाहिए कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, फिर मैं आंसर लिख लूंगा, आई विल बी एबल टू डू जस्टिस, या मैं कहीं से पहले एक मॉडल आंसर देख लेता हूँ फिर मैं आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा। ऑब्वियसली वी हैव दिस काइंड ऑफ अ मेमोरी, हमें याद रहेगा कि हमने क्या देखा है, बट एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। you have 3 hours and you have two papers that day, so morning shift, evening shift, एक ही दिन में दो अलग अलग पेपर्स होते हैं। तो वहां पे आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी इतने काम एंड कंपोज्ड वे में रहेगी कि आपको वैसे याद रहेगा? नहीं होगा। एंड आपने अपने आप को ऑलरेडी इस हैबिट में डाला है कि मैं पहले कंटेंट देखता हूँ, मैं फिर आंसर लिखता हूँ। सो दैट मीन्स आपका जो सेल्फ वे ऑफ आंसरिंग है, आपके जो वे ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स है, दैट इज नॉट हैपनिंग। We want you to practice this। When I say answer writing practice, you know, we need to practice कि खुद से कैसे लिखना है, ना कि कहीं से कॉपी करके लिखना है। ठीक है, तो रेगुलर कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पहले कुछ दिन होगा कि आपसे नहीं लिखा जाएगा, आप ऐसे लिखने बैठो आपसे नहीं लिखा जाएगा, नो मैटर आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी क्यों ना, वो तभी होगा जब आप डेली अपने आप को टॉपिक दे रहे हैं और डेली लिख रहे हैं, तो धीरे धीरे आप खुद देखोगे आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट है। सेम इज विद साइकोलॉजी ऑल्सो। सो यस, राइट एवरी डे। हो सकता है पहले तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन भी नहीं आ रही है, ठीक है, सो रीडिंग समथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, आर्टिकुलेटिंग थॉट्स एंड कन्वर्टिंग दैट इनटू अ टेक्स्ट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तभी लोग कंटेंट राइटर्स ढूंढते हैं ना, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता ये स्किल, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई इवन इफ यू आर अ बिगनर, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ कट कॉपी पेस्ट करके मैंने कंटेंट रख लिया है, या आई एम मेकिंग नोट्स तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ वहां से और उसको पेस्ट कर लेती हूँ। बहुत टेम्पटिंग लगता है, ऑफ कोर्स लगता है कि हार्ड वर्क सेव होगा, टाइम बचेगा एंड ऑल ऑफ दैट, यस वेरी गुड। या किसी के नोट्स ले लिए वही पढ़ने लग गए, बट किसी और के नोट्स, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनका तरीका है, आपका नहीं है, आपका अपना स्टाइल हो सकता है कुछ, दैट यू हैव टू फिगर आउट। इट कुड बी कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन मेरे लिए बहुत इजी है, सो आई डोंट हैव टू राइट दैट इन माय नोट्स, बट आपके लिए हो सकता है बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस। तो पर्सनलाइज अपने नोट्स बनाइए और अपना लिखिए, चाहे वो न्यूज़पेपर से आप लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। So get into the habit of writing। UPSC is still a paper pencil test।
फॉर अ रीजन इट इज नॉट अ सीबीटी, इट्स नॉट अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या वहां पे क्लिक कर रहे हो या आप यू आर जस्ट राइटिंग एंड टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, उसकी प्रैक्टिस अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि राइटिंग टेस्ट है तो प्लीज प्रैक्टिस एवरी डे, गिव योर सेल्फ सम क्वेश्चंस, राइट इट डाउन। धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। पहले तो हो सकता है कुछ भी ना आए, हो सकता है कुछ दिनों बाद आप कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर दोगे। सो रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली टू improve the articulation of thoughts but also to improve the writing skills, your handwriting, your you could say how do you draw things, how do you write things, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी और स्पीड भी बढ़ेगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीड हमें बढ़ानी है। हो सकता है पहली बार आंसर लिखने में बैठोगे 15 मिनट 20 मिनट कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। सो 20 मिनट का तो मार्जिन है ही नहीं हमारे पास, 7-8 मिनट ही है, तो उतनी स्पीड में ही आपको लिखना है। ठीक है, देन रिव्यू गुड आंसर मॉडल्स और सॉरी मॉडल आंसर्स या मॉक आंसर्स। नाउ व्हेन आई से कि किसी और का देखना है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं का मगअप करके या उन्हीं का कॉपी करके वही कंटेंट आपको लर्न करना है और वही लिख देना है। व्हेन आई से रिव्यू दैट मीन्स कि टॉपर्स के जो मॉडल आंसर्स हैं जस्ट गिव इट अ ग्लैंस कि क्या डिफरेंट कर रहे हैं वो लोग, क्या अलग है, कुछ स्टैंड आउट कर रहा है, कोई डायग्राम बनाते हैं क्या, कुछ अलग कर रहे हैं जो उनके मार्क्स ज्यादा आए हैं या उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। खाली इतना करना है। आई गॉट अ क्वेरी फ्रॉम अ स्टूडेंट, वो कह रहे थे कि दे हैव टू डाउनलोड एंड वो उससे लर्न करते हैं, तो लर्न तो नहीं कर सकते। सी वहां पे आपको बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है, एकदम से आपको यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, इट्स अ वेरी हाई प्रेशर एनवायरनमेंट। तो वहां पे ये सब नहीं याद आता कि क्या किया था क्या नहीं किया था। और किसी और का आंसर स्टाइल आपका कैसे हो सकता है, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन यूनिक स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग। सेम क्वेश्चन आई सी कुछ स्टूडेंट्स किसी वे में आंसर करते हैं, कोई कोई किसी वे में आंसर करता है, सबका एक अपना यूनिक तरीका होता है। सो ट्राई टू गो फॉर दैट, बट यस आप किसी का मॉडल आंसर रिव्यू कर सकते हो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हाउ कैन आई राइट दी बेस्ट आंसर, या कुछ आप पॉइंट्स पिकअप कर सकते हो कि हाँ इन्होंने डायग्राम्स बहुत अच्छे बनाए थे या इन्होंने बहुत स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखा था, वर्ड लिमिट कैसे मेंटेन करी है, सो एंड सो फोर। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ मॉडल आंसर्स। ठीक है, yes for you could say for understanding कि क्या क्या लिखना है, initially you can also see कि what can be the template answer for this question। जब आप अपने नोट्स बनाओगे और जब आप नोट्स बनाते टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखोगे, सो कीप अ कनेक्शन कि ये क्वेश्चन है, इसका टेम्पलेट आंसर मेरे नोट्स में यहाँ पे लिखा है, या दिस वे यू कैन ऑल्सो मेक योर नोट्स, right? Then feedback is one of the most important. You're writing answers but you're not getting feedback by your peer or mentors, then it's a problem because you don't exactly know from where would you like to improve. So ये बहुत जरूरी है कि आप किसी को पकड़े जो आपको मेंटोर करे, जो आपको गाइड करे। टेस्ट सीरीज हैं बहुत सारी, अब तो साइकोलॉजी में अवेलेबल हैं। पीयर भी होते हैं, आई थिंक सम ग्रुप्स आर देयर इन टेलीग्राम, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट बट इट कुड बी। पीयर में थोड़ा सा ये चांसेस रहता है क्योंकि वो भी फेलो एस्पिरेंट है, आप भी फेलो एस्पिरेंट है, तो नॉट एग्जैक्टली एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। बट अगर हाँ किसी ने ऑलरेडी अटेम्प्ट दिए हैं, ऑलरेडी उनके नंबर आ चुके हैं, तो फिर आप उनके साथ कर सकते हो। having a good mentor would be okay, so yes try to get a mentor। अगर कोई घर के आसपास या ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो आपके बजट में आ रही है, गो फॉर दोस। सो यस फीडबैक इज इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आंसर लिख रहे हो बट उसका कुछ पता नहीं कि अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है। ठीक है, देन मॉक टेस्ट, यस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। चाहे आप क्यों मॉक टेस्ट क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, I'll just tell you why। It's not about testing your कि आपको कंटेंट कितना आता है and all of that। Mock test is for your practice that your body is getting used to that condition, वो important है। तो जब अगर स्पेशली फॉर मेंस अभी मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, जो बिगिनर्स है उनको मॉक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड मेंस उनके लिए मैं बोल रही हूँ फीडबैक और मॉक टेस्ट तब ले। और आसपास कोई कोचिंग है, कोई ऑनलाइन अगर फिजिकल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, ऑफलाइन कोचिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन इज ऑल्सो गुड इनफ। तो उसमें क्या है, आपको एक कंडीशनिंग हो जाती है, योर बॉडी गेट्स यूज टू इट, क्योंकि 3 आवर्स आई हैव टू सिट एंड राइट आंसर, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ और वो नहीं है, हमें वो प्रिपेयर प्रिपेयर करना है आपको, है ना।
So this is very important that you are used to sitting so many hours, you're used to writing the answers very very quickly in that speculated time. तभी आपका एग्जामिनेशन डे पे इजी होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचो कि वहां पे लिख लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। इट्स टोटली अ रिकग्निशन काइंड ऑफ अ टेस्ट। तो आपकी बॉडी जो ऑलरेडी यूज टू है, उस एंजाइटी के यूज टू है, तो वहां पे ज्यादा एंजाइटी नहीं होगी। ठीक है, सेम इज फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। अगर आप अपने आप को रोज प्रीलिम्स की प्रैक्टिस नहीं कराएंगे बिफोर द प्रीलिम्स, इफ यू आर नॉट सिटिंग एवरी डे फॉर 2 hours एंड गिविंग द टेस्ट, तो यू विल नॉट गेट यूज टू इट ऑन दैट डे, एंड उस दिन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको अपने आप को उस वे में, उस कंडीशंस में, उस तरीके से आपको ढालना है और रोज प्रैक्टिस करनी है, ताकि उस दिन जब एग्जामिनेशन में, जब आपके 5 दिन एग्जाम्स होंगे सुबह शाम, तो आपकी पहली बात तो तबीयत नहीं खराब होगी, आप फेंट नहीं होगे, आपके लिए ओवरवेलमिंग और एंजाइटी अटैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप अच्छे से वो 3 घंटा यूज कर पाओगे। वरना स्टार्टिंग में तो इतनी घबराहट और एंजाइटी होती है कि आधा टाइम तो वही निकल जाता है। तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ दोज कंडीशंस। सो यस, कोशिश करो कि ऑनलाइन कोई मेंटरशिप हो या ऑनलाइन कोई मॉक्स दे। घर पे भी कर सकते हो, घर पे बिल्कुल टेबल अपना जो है साफ कर लो, कुर्सी चेयर लगाओ, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, बस आपको आंसर लिखना है। एक टाइमर या घड़ी होनी चाहिए आपके पास, दैट्स इट। ठीक है, तो मॉक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस, वंस यू हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स, तब बोलूंगी। ठीक है, वैसे अगर आप डेली आंसर्स लिख रहे हैं तो फीडबैक यू कैन कीप टेकिंग कंसिस्टेंटली। ठीक है, another important practice, now this is specially for once जैसे जिनका मेंस क्लियर हो गया है, या आगे जब अब आपकी नोट्स कंप्लीशन हो गई है, या आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं ऑप्शनल की, या आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो गया है, ठीक है, देन हाउ कैन यू कंसोलिडेट योर प्रिपरेशन। तब आप उस स्टेज पे आ गए हो कि आप आंसर राइटिंग करो। प्लीज मेक very very good use of previous year question papers. More than 10 years questions you will get, that's a very good amount. कोई जरूरत नहीं है कि अलग से आपको कोई मॉक टेस्ट खरीदना है एंड ऑल ऑफ दैट। previous year question, especially for psychology, I'm not talking about the other papers, but for psychology you have more than enough content or more than enough question bank for psychology paper, to make appropriate use for that. See, first of all, these papers are set by the रियल यूपीएससी एग्जामिनर्स। उनका ही माइंडसेट है, उनको पता है कि क्या पूछना है, क्या पैटर्न है। हम और आप कोई भी क्वेश्चंस देंगे तो वो हमने अपने तरीके से एक प्रिडिक्टिव वे में बना रखा है। But I am not UPSC. Nobody else is UPSC. Only UPSC knows what they want to ask. तो उनसे बेटर क्या ही हो सकता है ना। कोई भी मौका आप दोगे प्रैक्टिस के लिए, दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट इट वुड बी बेटर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छा यूज करो। when you're starting your preparation, then also you need to constantly see कि क्या question patterns हैं, क्या questions पूछ रहे हैं, क्या topics है repetitive, एंड जब आपकी कंसोलिडेट भी हो जाती है, जब बाद में आपकी प्रिपरेशन, आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, तभी भी आपको ये पेपर देखना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि फ्रीक्वेंटली क्या टॉपिक्स पे पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंटली क्या पैटर्न रहा है। उससे थोड़ा सा आपका इजी हो जाता है डेफिनेटली, because there are a lot of repetitive patterns, there are a lot of topics जो बहुत बार बार वो every year they ask, so it is very important कि एटलीस्ट उतने नंबर तो मेरे आ ही जाए जो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। ठीक है, टाइम्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को स्पेकुलेटेड टाइम एंड कंडीशन में वो आंसर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट से, वो ओनली विद प्रैक्टिस इट विल कम। पहले दिन हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लगे, सो धीरे धीरे प्लीज अपने आप को हैबिट में लेकर आइए। सेल्फ इवेल्युएशन भी करिए, अपना आंसर खुद पढ़िए कि लग भी रहा है कोई, इट्स मेकिंग सेंस। ट्राई टू गिव मार्क्स टू योर सेल्फ, कि अगर मैं एज एग्जामिनर इसको पढ़ता हूँ, मुझे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई गैप तो नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। एंड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन वंस यूर डन विद योर नोट्स मेकिंग, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, वरना आप भूलते ही चले जाओगे। सी, इतना सारा आपके पास कंटेंट है, इतना सारा आपके पास पेपर्स है, it's very human, you could say, nature that you will forget. So please plan out a revision kind of a thing, monthly, weekly, bi-monthly। ठीक है, आप पेपर 2 पे हो, पेपर 1 का आप भूल जाओगे, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रिवाइज करते रहो। Now this is for beginners mostly that I have talked about. Some things I would like to talk about for people who are giving mains. Otherwise, beginners also can make use of this tip. Number one is your, first of all, practice कैसे कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले वो ना यूपीएससी वाला बुकलेट खरीद लो। ठीक है, कि
A4 साइज में लिखते कैसे एग्जैक्टली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप उस पैटर्न में आ जाओगे। सी लाइन वाली बुक में लिखोगे या कोई और पेज पे लिखोगे तो यस, फॉर प्रैक्टिस पर्पस इट्स ओके, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। तो आपको उसी कंडीशनिंग हमें वो करवानी है। तो आप प्लीज एक बुकलेट खरीद लो, आई डोंट थिंक इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। राइट योर आंसर्स इन दैट ओनली, बिकॉज एग्जामिनेशन में भी वैसे ही होगा, आपको वही सेम सेम चीजें करनी है जो एग्जामिनेशन में होने वाली है। तो उससे आपका जो है एग्जामिनेशन में आप परेशान नहीं होगे, ठीक है। सो वन नंबर वन थिंग इज दैट। सेकेंड नंबर इज टाइमर। प्लीज अपने आसपास टाइमर रखे, जब भी आप आंसर लिख रहे हो नोट करो कितना टाइम लगता है, so 10 minutes लग रहा है, 20 minutes लग रहा है, and every time that you write answer, every day that you're writing answer, is it decreasing or not? If it's not decreasing, then obviously you have to do something about it, आपको और जल्दी लिखने की जरूरत है। If it's decreasing slowly, पहले हो सकता है पहले दिन 20 मिनट लगा, अगले दिन हो सकता है कि 17-18 मिनट लग रहा है, फिर उसके अगले दिन हो सकता है 15 मिनट लग रहा है, फिर 10। तो दैट मीन्स आप ट्रैक पे हो, आपको अब धीरे धीरे जल्दी जल्दी लिखने की हैबिट हो रही है, तो उसको और हमें जल्दी जल्दी करके 10 मिनट फिर 8 मिनट लेकर आना, ठीक है। सो दिस विल हैपन विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। तो बट टाइमर आपके पास होना चाहिए। अपने जो स्टडी टेबल है उसमें प्लीज बहुत सारी हॉच पॉच चीजें रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आपके पास क्लॉक होनी चाहिए, आपका राइटिंग कंटेंट होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। देन पेन, सुनने में बहुत ही रिडंडेंट लगता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज योर लाइक अ स्वॉर्ड इन दिस वॉर। सो इसको बहुत ही मिटिकुलसली यूज करिए, देखिए आपके पास काफी टाइम है, तो आंसर जब आप लिख रहे हो कौन सा पेन कंफर्टेबल है आपके लिए, जो आप पकड़ सकते हो, जिसकी ग्रिप अच्छी है, पसीना नहीं आ रहा है बार बार, क्योंकि एग्जामिनेशन में वहां पे पता नहीं क्या कंडीशंस है, बहुत गर्मी हो सकती है, बहुत पसीना आ सकता है, एंजाइटी तो है ही है, तो हाथ भी कांपते हैं। तो उस समय भी कोई नया फैंसी पेन मत खरीद के ले आना। यूजुअली मैंने सुना है रेनॉल्ड्स के पेन बहुत अच्छे होते हैं, या जिनकी जो बेसिक पेन्स होते हैं इनकी ग्रिप अच्छी होती है, गो फॉर दोज काइंड ऑफ पेन्स। एंड उसी पेन से रोज प्रैक्टिस करो, पूरा पैकेट खरीद लो, उसी को प्रैक्टिस करो उसी पेन से, अपने बॉडी को हैबिट में लेकर आओ कि मेरे को उसी पेन से लिखना है। फ्लो जिसका अच्छा, ऐसा ना हो कि रुक रुक के चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो कि 3 घंटे में इतने क्वेश्चंस लिखने हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। सो पेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ स्टेशनरी में पेन ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा पेंसिल ले लेना। अब इस चक्कर में मत पड़ना कि ब्लैक पेन भी रख लेते हैं, वो वाला कलरफुल पेन भी रख लेते हैं और फिर हम अंडरलाइन भी कर लेंगे, हम डायग्राम्स भी कलरफुल बना लेंगे। अगेन इट्स नॉट अ स्कूल प्रोजेक्ट, तो प्लीज एक ब्लू पेन इज मोर देन इनफ, ज्यादा से ज्यादा पेंसिल, बस इससे ज्यादा नहीं, वहां टाइम भी नहीं होगा कि आप पेन बदलो या पेंसिल बदलो, ठीक है। तो एक ही पेन से अब अपने आप को प्रैक्टिस में लेकर आओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ you know how to write answer writing. कुछ जो key points I would say is diagrams, flow chart, very very important. Remember the word limit that is there, उसके accordingly structured answer, crisp answer, short statements and so forth, not paragraph styles at all. Try to give real life examples, try to give real life implications कि theory का real life में क्या implications है, example पूछा है तो example given you should give, ठीक है। देन और क्या था, यस वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी थ्योरी पूछी गई है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज वैल्यू एडिशन ना। तो जो भी थ्योरी है, जो भी क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव सम स्टेटिस्टिकल एविडेंस, कुछ भी उसमें प्रूफ लिखने की कोशिश करो। बुक में भरी पड़ी है, अगर आप कोई भी चैप्टर उठाओगे, हर बुक में हर पन्ने में कम से कम 10 स्टडीज गिवन है इन टर्म्स इन ब्रैकेट्स, तो प्लीज उसको लिखो, ठीक है। मतलब याद करो अपने नोट्स ही आपके लास्ट में बचने चाहिए। आपके पास जब आप क्लियर कर लेते हो यूपीएस सॉरी जब आपकी साइकोलॉजी ऑप्शन कंप्लीट हो गई, यू डन विद द सिलेबस, अब आप रिवीजन के मोड में आ गए हो, तो आपके नोट्स इतने कंसोलिडेटेड होने चाहिए कि सिर्फ नोट्स ही पढ़ना है, अब आपको वापस से बुक नहीं खोल के देखनी है, आपको वापस से कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है, आपके वही नोट्स इंपॉर्टेंट है। यस, न्यूज़पेपर में कुछ नया आ रहा है तो उसको लिख लो, दैट्स इट, ठीक है। तो वो चीज आपको होनी चाहिए कि आपके नोट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए दैट यू डोंट हैव टू you could say read again and again, you don't have to open the book again and again, वही notes ही आपको पढ़ने हैं। And yes, every day you need to please
यू कुड से कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, कुछ रेलिवेंट आता है इन सॉल्विंग यूथ प्रॉब्लम्स, इन सॉल्विंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इन सॉल्विंग एनी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, बहुत आर्टिकल आते हैं एडिटोरियल्स पे। उसको प्लीज जो लास्ट के जो स्टेटमेंट्स हैं, इम्प्लीकेशंस हैं या यूजफुल मेथड्स जो उनके हैं, उसको प्लीज लिख लो और यूज करो। न्यूज़पेपर में इतना ही रोल है आपका। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है while writing the answer। ठीक है, all of that I have done। I will just take up your question। एक छोटी सी मतलब I just want to show you this thing। जैसे जिनका क्लियर हो गया है prelims, now they are preparing। So I have made this, just a minute। Yeah, all right। So this I have prepared for students who have just given the prelims। You have around 80 days in hand with you। So you know, उसमें अब आपको लास्ट के अब 80 डेज क्या करना है, उसके लिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिव नोट तैयार किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डिवाइड योर सिलेबस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सिलेबस जैसे पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से आपने डिवाइड कर लिया है। सो यस, यू नो, डिवीजन ऑफ द सिलेबस, जो भी ब्रेक डाउन करना है आपको। हो सकता है पेपर 1 में भी आपको कुछ ऐसा लगता है स्टैट्स का सेक्शन आपने अलग कर दिया, बाकी थ्योरी पोर्शन आपने अलग कर दिया, तो उस वे में डिवाइड करो। वीकली एंड डेली गोल्स तैयार कर लो। एवरी वीक व्हाट यू हैव टू डू, दिस मच टारगेट यू हैव टू कंप्लीट डेली, एवरी डे यू हैव टू डू आंसर practice। So at least 2 or 3 questions every day is more than enough for psychology। You don't have to, because see बाकी पेपर्स भी हैं, हमें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है। सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है हमारे पास, हमें बस जीएस के भी पेपर हैं, उसको भी टाइम देना है, ऐसे भी है, एथिक्स भी है। तो 2 or 3 questions per unit is more than okay। Towards the end you can take a full test। ठीक है, देन आपका रेगुलर रिवीजन चलता रहेगा साथ में। तो रिवाइज करो, जैसे यूनिट 1 का आप कर रहे हो तो यूनिट 1 अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर आंसर अटेम्प्ट करो। इस तरीके से कर सकते हो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लाइक आई सेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 2 or 3 questions एवरी डे। नाउ डिटेल प्लान क्या हो सकता है आपका, फर्स्ट 1 to से लेके 3 वीक्स तक एटलीस्ट जितने भी कोर कॉन्सेप्ट और थ्योरीज हैं पेपर 1 के, वो अच्छे से कंसोलिडेट कर लो। ठीक है, और हर दिन 5 दिन जो है आपके पूरे वीक में, उसमें उस टॉपिक्स को पढ़ो, अच्छे से फोकस करो, आंसर्स देखो, पर्सपेक्टिव्स देखो और आंसर लिखो उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट के दिन है उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, रिवाइज करते हो, कोई कमी आ रही है, सो वीकली दिस यू कैन डू। नेक्स्ट जो आपके कुछ वीक्स हैं उसमें जितना भी पेपर 2 से रिलेटेड है, सो नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल डू दी एप्लीकेशन पार्ट। सो जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, नई कंटेम्प्रेरी स्टडीज हो रही है, कोई भी आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीजें हैं, उस सारी पेपर 2 को अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि वो करंट पेपर है। एंड देन उसमें भी रिवीजन करो। एंड देन लास्ट के वीक्स आपके पास बच रहे हैं, उसमें अच्छे से अगेन रिवीजन करके टेस्ट लेना स्टार्ट करो। This way you can, I think, consolidate your preparation within 80 days। But yes, mock answer writing is very very important। Active answer writing, revision, वो सारी चीजें, mentorship is बहुत बहुत ज्यादा important है। And previous year question paper bank is more than enough। I would not say कि आपको कोई अलग से कुछ खरीदने की जरूरत है whatsoever। ऑलरेडी 2011 से लेके अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस कंपाइल हो गए हैं, यूनिट वाइज भी डिवीजन मिल जाती है। आप प्लीज उसका यूज करिए एंड मेक श्योर दैट यू राइटिंग दैट। बट यस, एक मेंटोर हो जाएगा तो आपको पता लगता रहेगा कि कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अपने रिसोर्सेज प्लीज लिमिटेड ही रखने हैं, बहुत ज्यादा अब नई बुक नहीं खोलनी है, कोई आपको नया किसी का नोट्स नहीं देखना है, किसी का कुछ और नहीं पढ़ना है। जो आपने अपना तैयारी कर रखी थी खाली उसको ही कंसोलिडेट करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, नाउ आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर। आई जस्ट टेक अप योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, see, value addition examples would be when you are giving current based examples, that would be one big value addition in your answers in terms of examples। So for example, जैसे अगर juvenile delinquency का ऊपर एक टॉपिक आ रहा है कि what is the problem of juvenile delinquency, how can we solve that in the society। तो उसमें अब जैसे एक recent रोड केस हुआ था, जो पुणे केस हुआ था, that was a case of juvenile delinquency, that was a case of
drinking and driving, that was a case of hitting the child and hitting the person and so forth. तो उसमें आप उस एग्जाम्पल को यूज करके जस्ट इन वन स्टेटमेंट, यू डोंट हैव टू एलैबोरेट कि पुणे में ये केस हुआ, फिर ये हुआ, फलानी हुआ, इतना नहीं करना। बस ये लिखना है कि द रिसेंट पुणे केस, उसमें ये हुआ, तो अब हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द मेजर दैट वी कैन टेक। ठीक है। सिमिलरली जब आपका संडे को जो पेपर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, या फिर जो आपका इंडियन एक्सप्रेस का जो पेपर आता है, एक्सप्लेन्ड एक टॉपिक आता है उसमें, राइट, एंड संडे में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप देखोगे कई बार कुछ स्टडीज गिवन होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज के ऊपर दिया हुआ है कि वो साइकोलॉजिकली न्यूरोसाइकोलॉजिकली कैसे इम्पैक्ट करती हैं, या कभी कभी CRISPR-9 या एडिटिंग टूल्स के ऊपर आता है कि कैसे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी उसमें एडिट कर सकते हैं, क्या नहीं। तो ये कुछ एक एक दो दो स्टेटमेंट्स हैं, यू नो। सो फॉर एग्जांपल रिसेंट स्टडी पब्लिश इन लैंसर जर्नल, उसमें आप ऐसे एक स्टेटमेंट डाल सकते हो कि अगर आपके पास डिप्रेशन के ऊपर या आपके ऊपर आपके पास डिसऑर्डर्स के ऊपर कोई टॉपिक आता है तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है। सो दीज वुड बी वैल्यू एडिशंस। Another, like I'm saying constantly, when you are reading the chapters, when you're reading the content, you will constantly find researches जो ब्रैकेट में गिवन है, एंड वो आपको लिखनी है। आई विल जस्ट शो यू मैं अपनी क्लास की पीपीटी दिखाती हूँ जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसमें यू विल सी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So for example, right now I'm teaching child development, I'm talking about developmental psychology. So what exactly where I say कि आपको years भी लिखने हो। Oh, not this one. अब जैसे ये पियाजे की थ्योरी है, um, no, not this one. Wait a minute. Where did I teach? Yeah. सो अब जैसे आप ये देख रहे हो कि ये आपका टॉपिक गिवन है कि जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है उसके क्या फीचर्स हैं। सो वन ऑफ द फीचर इज दैट इज मल्टी डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल है इन द सेंस कि सबका अलग अलग एक दूसरे को बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, कोई ऐसा एक सिंगल यूनि डायरेक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही है, यू आर ऑल्सो एडिंग टू द लैंग्वेज, आपका फैमिली से भी रिलेटेड है, एंड सो फोर्थ। सो एनी विच वे, अब आप देखोगे साथ में ये सब स्टडीज भी गिवन है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन एंड बॉल्स हैज गिवन वन स्टडी, देन दिस सॉल्ट हाउस हैज गिवन वन स्टडी। तो आप ऐसे देखोगे थ्रू आउट योर बुक्स यू विल फाइंड दिस। ठीक है। तो ये आपको लिखनी है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये सारा ही लर्न करना है, बट अगर आपको ये वर्ड इजी लग रहा है बॉल्स 2009, तो ये आप लिख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट इज डायरेक्शन, सॉरी, मल्टी डायरेक्शनल इन नेचर, ये स्टेटमेंट लिखा और आपने ब्रैकेट में ये स्टडी लिख दी। ठीक है। अब आप जब नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको ये रिवाइज होता रहेगा, आपको याद होता रहेगा। आपको ये नाम नहीं अच्छा लग रहा तो ये ज्यादा नाम इजी है, सॉल्ट हाउस, इजियर टू रिमेम्बर। सो दिस वे, अब जैसे यहाँ पे लिविट है 1989, तो ये आप करना है। आपको अगर जैसे से तीन चार नाम गिवन है रिसर्चेस के साथ, आपको सिर्फ एक लिखना है उसमें से, वो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। सो दिस वे, दिस इज अनदर वैल्यू एडिशन दैट आई कैन टेल यू डेफिनेटली वुड एनहांस योर आंसर्स। ठीक है। दिस लुक्स लाइक अ tedious exercise, but believe me, it will give you your fruits. Who are the examiners? Basically एग्जामिन जो आपका जो पेपर चेक करते हैं कौन होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर्स होते हैं, यू नो, फ्रॉम गुड रिनाउंस्ड यूनिवर्सिटीज, या एचओडीज हो गए उस डिपार्टमेंट के। तो ये वैसे ही माइंडसेट से रहते हैं जैसे वो यूनिवर्सिटी में एक्सपेक्ट करते हैं कि मास्टर्स का पीएचडी लेवल के जो पेपर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वहां पे जो एग्जामिनेशन होते हैं वैसे ही होते हैं। बिकॉज सी इन योर मास्टर्स देर इज नो बुक, और देर इज नो कंटेंट, और देर इज नो कि आपको एक बुकलेट मिल गई है वही पढ़ के वही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपको क्लास में लेक्चर्स दिए जाते हैं, और वही आपके पास, मतलब उसमें आपको, यू नो, यू गेट दीज क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर। सो इट्स टोटली अप टू यू। तो यूजुअली मैंने यही देखा है
I don't know whether you I'm sure you must have seen Barron and Cicerelli. तो जो आपके गिरीशर मिश्रा का जो फॉलोवर है, he was my professor in Delhi University, so I was under him. Similarly प्रीति कपूर मैम का भी आ रहा है आई थिंक सिसरेली में, अब जो नई एडिशन आने लग गई है, सोशल साइकोलॉजी बैरन में मिलता है, आपने देखा है. शी वाज आल्सो माय यू कुड से लेक्चरर एंड प्रोफेसर इन माय कॉलेज. सो आई यू कुड से अंडरस्टैंड कि वो लोग कैसे, मतलब किस माइंडसेट से एक्सपेक्ट करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि यही एग्जामिनर है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दीज आर सम इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट्स, इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल, जो काफी मतलब जो जितनी भी साइकोलॉजी रिलेटेड चीजें होती हैं उनमें काफी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, काफी ज्यादा इनके कंटेंट्स, इनकी बुक्स रही हैं. तो जब पेपर सेट होते हैं तो यही कॉलेज प्रोफेसर होते हैं जो क्वेश्चन पेपर भी सेट करते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली चेक भी करते हैं. ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई आईएएस एस्पिरेंट आके या आईएएस ऑफिसर आके चेक कर देता है वहां पे पेपर. ठीक है, तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस वुड बी अ गुड वे ऑफ राइटिंग अ गुड आंसर. ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर. और क्या डाउट्स थे आपके? I'll send you the previous year evaluation compilation. Yes, okay. Please just message me personally. I will send it to you. Then, how do you do value addition? I just told you. What shall be the process of brainstorming in a question which asks factors and dimensions? It's a very direct question. So factors and dimension में आपको डायरेक्टली पॉइंट्स लिखने हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. तो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? यूजुअली आपके मोर और लेस कुछ ही फैक्टर्स हैं. एक तो सोशल मीडिया का रोल है, फिर आपका जो डेवलपमेंट हो रही है उस समय, चाइल्ड इज एट ऑल काइंड ऑफ इमोशनल टर्मोइल, सो दैट कुड बी वन थिंग. अथॉरिटेटिव फिगर के साथ हो सकता है अग्रेसिव है, so that could be one thing. Parenting, role modeling, learning. तो जब सोशल लर्निंग ही उसको ऐसी दिख रही है, जब मीडिया में, मूवीज में हम एनिमल जैसी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे वाह ये तो ऐसी ही होना चाहिए, तो दिस इज व्हाट चाइल्ड्स लर्न. स्कूलिंग, पीयर लर्निंग, यही सब फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, सो इस वे में यू हैव टू आंसर. दिस इज जस्ट एग्जांपल. ओके, सो या is there any keywords are they looking for? Not see, the keywords lies in the question only. You understand the keyword given in the question, what they're asking, answer accordingly. ठीक है, अगर ना less ना ज्यादा, मतलब not too much, not less. So it should be precisely to what exactly they have asked you. ठीक है, and of course कितने marks का question है, कितनी weightage देनी है, so and so forth. So just first, I always say, whenever I start my batch, whenever I teach my students, I always say that, read the content and then do the previous year exercise. यानी previous year question papers पढ़ना है पूरा और देखना है कि क्या मांग रहा है examiner, what are the kind of questions they are asking, and then go back again, read the content or the syllabus. You will get a vague idea कि okay, this is what they're asking or this is what they're asking, and ये टॉपिक देखो बार बार आ रहा है, तो आप मार्क कर सकते हो. उससे आपको एक थोड़ा थोड़ा क्या होगा, स्कैफोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे करनी ही करनी है व्हेन आई एम डूइंग माय सिलेबस. ठीक है, दैट इज व्हाई प्रीवियस ईयर यू कुड से क्वेश्चन पेपर्स एंड योर सिलेबस, बोथ ऑफ देम आर बाइबल. मतलब उसको तो आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना ही पढ़ना है. आपको सिलेबस बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए और बार बार आप ग्लैंस करो कि क्या पेपर्स हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, so and so forth. How to evaluate the answers you have written. So just read it yourself. If you feel that you have done justice or can you do better, उसी क्वेश्चन का देखो बाकी लोगों ने क्या आंसर लिखा है, उन्होंने अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है. मॉडल आंसर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, टॉपर्स के भी आंसर बहुत सारे अवेलेबल हैं. वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर देखो कि बाकियों के साथ कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है. सो दिस वे यू कैन इवेलुएट योर आंसर. ठीक है, all right, so this was it from my side. If you have any other doubt, any other questions that you would like to, yes, how to address the demand of the question. See, the question was why psychology, sorry, why memory is not like a tape recorder, or memory is not like a tape recorder. This was the question mark, nothing आगे उसके पीछे कुछ नहीं बताया था. ठीक है, तो here you have to talk about कि simply they have given a statement, तो आपको उसी statement को prove करना है कि yes, memory is not a tape recorder. ठीक है, now what the problem is, they are not asking comparison. A lot of students they have started giving comparison कि tape recorder में क्या होता है,
और मेमोरी में क्या होता है, हमने ये तो नहीं पूछा आपसे, आई डिड नॉट आस्क यू टू कंपेयर टेप रिकॉर्डर विद मेमोरी, और आई एम नॉट, जैसे एआई हो गया, सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू कंपेयर एआई विद कंप्यूटर, और आई एम नॉट आस्किंग कि एआई से ह्यूमन ब्रेन को कंपेयर करो। तो ये क्वेश्चन नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि टेप रिकॉर्डर नहीं है वो, तो उसी स्टेटमेंट को ही जस्टिफाई करना है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेमोरी इज डायनेमिक इन नेचर, मेमोरी इज अ रिकंस्ट्रक्ट सॉरी मेमोरी इज अ कंस्ट्रक्टिविस्टिक फीचर जो है हमारे अंदर, यानी कि जो मेमोरीज हैं वो कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं हम लोग और डीकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। तो उस स्टेटमेंट पे, उस चीज पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए, रादर देन एक्सप्लेनिंग कि टेप रिकॉर्डर में ये फीचर होते हैं, टेप रिकॉर्डर में स्टैटिक होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता टेप रिकॉर्डर में क्या हो रहा है, मुझे ये बताना है कि मेमोरी क्यों टेप रिकॉर्डर नहीं है। Can you understand the difference now? So I have to focus more on that memories are very fragile. They can be constructed or deconstructed. There are multiple factors that can impact the memory. It could be wear and tear, it could be decay theory, it could be emotions, it could be it could be any emotional turmoil जिसकी वजह से वो जो memory formation है उसमें, it could be a retrieval issue, इट कुड बी अ स्टोरेज प्रॉब्लम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो आपकी मेमोरी है वो बिल्कुल चेंज हो सकती है, वो करप्ट भी हो सकती है, वो चेंज भी हो सकती है, वो मॉडिफाई भी हो सकती है। बट टेप रिकॉर्डर इज अ स्टैटिक थिंग, वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो टेप रिकॉर्डर इज अ स्टैटिक थिंग, या स्टार्टिंग में लिख सकते हो टेप रिकॉर्डर इज स्टैटिक एंड मेमोरीज इज डायनेमिक एंड नॉट लाइक अ टेप रिकॉर्डर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, दैट सो द प्रॉब्लम वाज, यस यू आर राइटिंग द सेम थिंग, इन द एंड इट्स द सेम थिंग, बट वो फिर बैलेंस हो गया कि आप टेप रिकॉर्डर को भी जस्टिफाई कर रहे हो और आप मेमोरी को भी बता रहे हो कि क्या है वो। मुझे टेप रिकॉर्डर से क्या लेना देना, मुझे तो ये जानना है कि मेमोरी टेप रिकॉर्डर क्यों नहीं, मुझे पता है ऑलरेडी कि क्या प्रॉब्लम है टेप रिकॉर्डर में और उसमें। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। सो टेप रिकॉर्डर वाला क्वेश्चन ये है, ये कई बार आपसे पूछ सकते हैं दैट मेमोरी इज डायनेमिक एंड सो फॉर। आंसर इसका यही होता है हमेशा कि मेमोरी जो है बहुत ही फ्रजाइल होती है या बहुत ही इजीली वो चेंज हो सकती है। सो दिस आई थिंक आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू। दिस विल ओनली कम विद प्रैक्टिस, जब आपका पूरा कंटेंट अच्छे से हो जाएगा कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस के साथ एंड सम मेंटर हु इज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग। ठीक है, all right, any other question, anything that you would like to ask? I hope I was able to help you out and I was able to give you some insight how to, write good answers in psychology. This is I think the best way I could come up with and what we expect in a good answer basically. All right, let me know anything else. Yes, yes, Akansha. मैम जैसे मेरा क्वेश्चन होता है कि कोच जो होता है वो, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, जैसे नॉलेज हमें कोच से शुरू था क्वेश्चन, उसके बाद उसमें सोसाइटल प्रॉब्लम पूछा था, तो हमें पर्टिकुलर इस पे फोकस करना है, उस पे आपको सोसाइटल प्रॉब्लम से फोकस करना है। दैट ओपनिंग स्टेटमेंट इज जस्ट, लेट्स यू कुड से अ वेरी रिफाइंड वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन, इट्स लाइक अ टेप रिकॉर्डर वाला टॉपिक नहीं, वो आपको लगेगा कि हमें उस पे तो नहीं जस्टिफाई करना है ऑल ऑफ दैट, यू डोंट हैव टू फोकस कि नॉलेज विदाउट यूज इज यूजेस। आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट वैसे दे सकते हो कि यस यू नो कि नॉलेज को अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो किसी भी काम की नहीं है। And in psychology, when we have so much advancement, when we understand the human behavior so well, it is imperative that we use it to solve societal problems, and then you can continue with how do we use psychology in solving problems. So this way you have to connect that statement to your main answer, उसका सिर्फ यही पर्पस होता है, दैट्स इट, और उसमें कुछ इलेबोरेटिव नहीं होता है। ठीक है, मेन आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे साइकोलॉजी को, इतनी एडवांसमेंट हो गई है, इतना हमें पता है कि लर्निंग क्या होती है, परसेप्शन क्या होती है, बिहेवियरल चेंज कैसे हम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, तो उसे अब हम सोसाइटल प्रॉब्लम्स को चेंज करने में यूज करेंगे। व्हेन वी नो व्हाट इज ग्रुप डायनेमिक्स, व्हेन वी नो व्हाट इज प्रेजुडिस, व्हेन वी नो, सी साइकोलॉजी का भी जो मेन आप देखोगे, देर आर 4 गोल्स, कि आप पहले उसको डिस्क्राइब कर लो, एक्सप्लेन कर लो, वी आर एबल टू प्रिडिक्ट इट, एंड वंस वी आर एबल टू प्रिडिक्ट समथिंग वी आर एबल टू अप्लाई इट, यानी वी कैन चेंज इट। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं दैट इज जस्ट टू ब्यूटिफाई द क्वेश्चन, एंड वो बस आप ओपनिंग स्टेटमेंट में just to see, you connect with the question that they're asking. If they're asking according to you, so you will write according to me.
if they've given the statement, connect with that statement and start answering. ऐसा लगना चाहिए कॉन्वर्सेशन हो रही है, क्वेश्चन पूछा है तो उसी का जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं. तो कनेक्शन आपको बनाना है, एक कोहेरेंट वे में आपको लिखना है कि जो पूछा है उसी का ही एग्जैक्ट आंसर हमने लिखा है, उसी वे में लिखा है जैसे वो पूछ रहे हैं. Okay, this way. How to divide the time between 10, 15, 20. See, on an average आपके पास पर क्वेश्चन 7-8 है, बट यस 10 मार्क्स में थोड़े कम भी लग सकते हैं, हो सकता है वो 5-6 मिनट्स में आप कर लो, बट 20 मार्क्स के लिए तो आपके पास 7-8 मिनट ही है. ठीक है, हो सकता है वो जो 5 मिनट 2-3 मिनट बचे हैं वो आप उधर लगा लो थोड़े से. सो इतना ही डिवीजन है. ठीक है, उतनी स्पीड में उतनी ही जल्दी जल्दी सब लिखना है. 10 मार्क्स का ये है कि थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. दैट्स ऑल. So use that time for 20 marks question, 15 marks question. That will only come जब आप full fledged answer writing practice करोगे, when you will take full length test and when you will sit for 3 hours every day and then you will start answer writing. Yes. All right. Any other questions? Anything? Any doubt? I hope it was helpful. Please give me some kind of feedback so that I can improve. All of you, I think, I hope you have my Telegram ID, which is Nimisha001. That is my personal one. And the the doubt group is also very active these days. So वहाँ पे भी आप लिख सकते हो, but you can always reach out to me. And please spread it to all the other students and aspirants who are preparing for psychology. That would be a great help from your side. That that I'm able to you could say reach out to more and more students. So that's the only help that I'm asking you. Thank you so much for joining today. It was a really lovely session. I hope you also found it very, very useful and you can implement those things. And you can always just contact me. I'll be in touch. I might take some time because मेरी classes भी होती हैं psychology optional की, and I'm also doing answer writing practice and correction mentorship for other students. So मुझे थोड़ा सा time लग जाता है, but I will definitely revert back to you. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you.